Namaskar and Jai Hind. First of all, I must thank Aditya and Shwari ma'am and Adlesh and of course Jan Sanyal and all the veterans who made it to this hall today evening. Thank you very much and thanks to everyone for being here. And some of you must be wondering as to, in this audience, which basically deals with business, money, corporate, entrepreneurship, what is a Fauji doing out here? Within 48 hours, it changed to denuclearization of Iran. Next 48 hours, it changed to destroying the military and navy of Iran. And next 48 hours, it changed to we will fight for 4 to 5 weeks. And next 24 hours, it changed to we will fight forever. And then it changed to there is nothing left in Iran to bomb now. इसके बारे में थोड़ा बोलिए सर। जो आज का इवेंट है ये यंग लीडर्स फोरम जो कलकत्ता चैप्टर है उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अपने मेंबर्स के लिए और ख़ास करके जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के वेटरन्स कोलकाता में रहते हैं उनके लिए। और मुझे मौका मिला बात करने का, बहुत अच्छा लगा। यंग एंटरप्रेन्योर्स, फ्यूचर ऑफ इंडिया, प्लस ऑफ कोर्स ऑल फ्रेंड्स वेटरन्स, और लीडरशिप के बारे में बात की, मोटिवेशन के बारे में बात की, क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बात की, जो आजकल ऑपरेशन सिंदूर जो ईरान वॉर चल रहा है उस पर बात की। सो इट वॉज वेरी गुड एंड द क्वेश्चन आंसर स्टैंडर्ड वॉज वेरी हाई, द एंगेजमेंट ऑफ द ऑडियंस वॉज वेरी गुड। आई एंजॉयड द टॉक, आई एम वेरी श्योर ऑडियंस ऑल्सो एंजॉयड। The way Middle East is described right now, Iran, Israel, and also America joined. And do you think that India's diplomatic role is pretty much perfect for the Indians as the Hormuz Strait is open for us? What's your assessment? देखिए, India has always been friend of America, friend of Israel, friend of Iran. There is a scope of multi-alignment. एंड स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया ने अपना शो किया है, चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर थी, चाहे वो ईरान इजराइल अमेरिका वॉर, वी हैव नेवर टेकन साइड्स एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स विद ऑल एंड आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आर शोइंग रिजल्ट्स, आवर गैस, आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर बीइंग मेट एंड टुमारो हु नोस इंडिया may be called upon to mediate and bring peace in the region and for the world. And like someone asked me the other day, where does India stand? My reply is India stands on its 2 feet. हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने 2 पैरों पे खड़े हो सकते हैं और हम दोनों के साथ दोस्ती निभा सकते हैं। बिना साइड नहीं हो। इंडियन डिप्लोमेसी आई थिंक हैज कम अप टू एंड ग्रेट सक्सेस एंड आई विश इंडियन डिप्लोमेसी इंडिया future successes and more importantly everything good for the Indian citizens. Sir, one last question regarding Bengal, and we share border with Bangladesh, and recently the Jamatis and the other forces have come up in Bangladesh. Do you think it's a matter of national security that the porous border between India and Bangladesh, and that must be secured with the fencing and everything I mean whatever is needed to ensure the national safety and security? See, after Sheikh Hasina's ouster and Yunus coming to chair in Bangladesh, Pakistan ISI and Pakistan Jamaat-e-Islami's influence has increased. Atrocities against the minorities, especially the Hindu minorities, have increased in Bangladesh. And a footprint of ISI
in Bangladesh is a matter of national state for India, because all the neighboring states, not only West Bengal, all the neighboring states have the potential for creating of mischief by ISI from Bangladesh. So it's definitely a national security matter, and government is taking cognizance of it. And with the new regime of the BNP having come in power there, and I'm very sure with their intelligence chief having visited India recently and met with our senior officials, I think these points are being discussed. And Indian diplomacy, Indian defense forces, Indian intelligence is always aware of these things, and we always work towards peaceful neighborhood and peace within the country. And internal agencies, external agencies, all are looking at it, and all requirements, all necessary arrangements which are required to be done for national security, not only for West Bengal, for all the neighboring states and other areas, I'm very sure they are being done. हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, वो फ्यूचर जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी उदास मत होइए, कभी भी डिसग्रंटल मत होइए, कभी भी हताश मत होइए, कभी भी ये मत सोचिए कि अभी मेरे पास करने को कुछ नहीं है। मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। 3 साल की उम्र में मेरे माताजी अपने हस्बैंड को बचाते हुए एक जानवर से उन्होंने अपनी जान खो दी। अगर 3 साल का बच्चा ये सोच लेता है कि मेरी तो माँ भी नहीं है, बाप तो मेरा नेपाल में है, मैं तो अभी कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, तो ख़त्म थी बात। मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ये कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं हार मानूंगा। और आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप सवाल पूछ रहे हो, तो यही एक सबसे बड़ा लेसन है कि नेवर से डाई, अपॉर्चुनिटी इज़ ऑलवेज देयर, नेवर से फेलियर इज़ फाइनल, फेलियर इज़ नेवर फाइनल, फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। सक्सेसफुल होने के लिए फेलियर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर सक्सेस को होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आप सीधे सक्सेसफुल हो गए, कल को कुछ क्राइसिस आया तो यू वोंट नो हाउ टू हैंडल इट। स्ट्रीट स्मार्ट होना, फेलियर के जीत के सक्सेसफुल होना, दैट इज़ परमानेंसी इज़ देयर। थैंक यू सर। पाकिस्तान जो है इज़ अ टेररिस्ट स्टेट, वो हमेशा टेररिज्म इस रीजन में फैलाता रहता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो उसके नेबरिंग कंट्रीज हो। और अभी जो अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट है, जो तालिबान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो पाकिस्तान ने सबसे पहले बोला था हमारा बहुत बड़ी जीत हुई है, ये हुई है, लेकिन आज उनके साथ में रिश्ते ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है वो फॉल्टी है, पाकिस्तान की जो पॉलिसी टुवर्ड्स इट्स नेबर्स वो फॉल्टी है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री है जो इज कॉलिंग द शॉट्स इन पाकिस्तान, दे डोंट बिहेव इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, दे डोंट बिहेव इन अ सिविलाइज्ड मैनर विद द नेबर्स। So that is the reason Pakistan is getting what it is getting. And Afghanistan की जिसकी ना एयरफोर्स है ना कोई स्टैंडिंग आर्मी है, उसके ऊपर आप एयर से अटैक कर रहे हो, ड्रोन से अटैक कर रहे हो, सिविलियंस को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, दैट इज़ नॉट वे टू बिहेव विद नेबर्स। इंडिया विल नेवर डू दैट। और सर ये जो वॉर हो रहा है तो ये कि इंडिया को कोई एक इफेक्ट कर सकता है? देखिए ये chances है? जो ईरान में जो वॉर हो रहा है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे, क्योंकि 20% ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कम्स फ्रॉम दिस रीजन, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो नेचुरल गैस है, और वो जब कोई भी चीज़, जब पेट्रोल डीजल या गैस महंगी होगी तो हर चीज़ महंगी होगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आपकी दाल सब्जी महंगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। स्टॉक मार्केट का इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं। इट विल इम्पैक्ट, बट इंडिया इकोनॉमी सो स्ट्रॉन्ग, हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट इसका कम रहेगा। हमारे रिजर्व इतने अच्छे हैं, हमारी मैनेजमेंट, क्योंकि हमारी सबके साथ दोस्ती है, हम रशिया से भी एनर्जी ले रहे हैं, हम ईरान से भी ले रहे हैं, हम अरब कंट्री से भी ले रहे हैं, तो हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं उसके कारण हमारे ऊपर इम्पैक्ट कुछ कम रहेगा, लेकिन यस इसका इम्पैक्ट होगा, सब पूरी दुनिया पर होगा। थैंक यू। नाम क्या है मैम? अग्रवाल एंड सलोनी सुरेखा। ओके मैम, टुडे जो इवेंट है फ्रॉम द बैटलफील्ड ऑफ द बोर्डरूम, इवेंट के बारे में थोड़ा बोलिए। So, from the battlefield to the boardroom is an event that we have kept for our YLF members. We have called a very decorated army officer for tonight's evening and session talk show. He will bring some insights from the battlefield that commonly we as Indians are not aware of to the full detail, and
that a lot of these leadership qualities, a lot of these commands, a lot of these insights from the battlefield are also of immense value in a boardroom or a work in uncertain situations. So that is the idea, and with the current war situation, we thought that why not have an event like this and get to know more about how a war is strategized, planned, and how things turn out. So you like to believe that all of us know about the battlefield only from the movies that we have seen, and we wanted to give insights from the actual battlefield, how it is strategized and planned and executed from the man himself who has taken part in Kashmir Valley to Uri to Operation Sindhu. So sir has a lot of experience and he has been part of army for a long time. We are lucky to have him as our guest speaker. 2019 पुलवामा अटैक एंड 2025 ऑपरेशन सिंदूर, वो जो दो माने युद्ध हुआ था उसके बारे में जो सर जो माने लीड माने एज अ लीडरशिप दिया ना, उसके बारे में थोड़ा बोलिए ना। उसके बारे में तो हमें लगता है कि आप सर से याद सुनिए, हम कुछ बोले से अच्छा जब आप यहाँ आए और सर से तो सुन लेंगे, तो आप थोड़ा बोलिए। सर ने ऑपरेशन सिंदूर में भी और आर्टिकल 370 में काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया था जब सारी अनरेस्ट थी और जब इसे रिवोक करना था। सो सर ने ऐसा सुना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अमित सिन्हा के साथ मिलकर इसे रिवोक करने में हमारी नेशन की मदद की, बहुत कंट्रीब्यूशन किया था और कश्मीर वैली में उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था बैटलफील्ड में, जो कश्मीर। ओके, थैंक यू सो मच सर एंड मैम।